A very good morning to you children. How are you all? I hope you are studying well also these days and preparing for all the class tests nicely. Soon you will be having your unit tests also, so you should study daily so that you can score good marks. Now before I begin today's English class, I would like to remind you the golden things which we should follow in order to stop the spread of pandemic, and those things are use of face masks, maintaining social distancing, and thirdly is maintaining proper hand hygiene. So I hope you all are taking care of these things so that we can keep ourselves safe from the disease. And now let us begin with our English class. Children, if you remember, we started with lesson number 3, An Earth Day Carol, and we had read 2 acts of the chapter in which we had seen that there was a boy whose name was Ebenezer and he was not at all taking care of Earth Day. Ebenezer को अर्थ डे मनाना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली अर्थ को क्लीन करना हमारी ड्यूटी नहीं है. सो नाउ व्हेन एबेनेजर गोज टू स्लीप तो उसके ड्रीम में अर्थ डे का गोस्ट आता है एंड द पर्पस इज कि वो घोस्ट आके उसको समझाना चाहता है कि अर्थ डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो हमने पढ़ा था कि पास्ट अर्थ डे का घोस्ट आता है जो एबेनेजर को ये दिखाता है कि पास्ट में हमारी अर्थ कितनी ब्यूटीफुल थी. इट वॉज फुल ऑफ प्लांटेशंस ऑल ओवर एंड देयर वॉज ग्रीनरी ऑल ओवर. और आफ्टर शोइंग दिस दैट घोस्ट गोज अवे और एबेनेजर को ये बोल के जाता है कि यू वेट फॉर द नेक्स्ट घोस्ट. नेक्स्ट जो घोस्ट आएगा वो आपको और भी कुछ समझा के जाएगा. नाउ लेट अस बिगिन विद एक्ट 3 ऑफ द चैप्टर. नाउ अगेन द सीन इज एबेनेजर्स बेडरूम ओनली. एबेनेजर वहीं अपने बेडरूम में है एंड द नरेटर इज स्पीकिंग. एबेनेजर वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड वॉन्डरिंग वेयर इज द नेक्स्ट घोस्ट, what lies ahead. Now Ebenezer जो है he is in his bed only but he is tossing. Tossing मतलब जब आपको नींद नहीं आती तो आप बेड में साइड्स लेते रहते हैं ना, तो that is the way Ebenezer was doing. क्योंकि उसके हेड में या उसके दिमाग में क्या घूम रहा था कि नेक्स्ट घोस्ट कौन सा आने वाला है और वो उसको क्या बताने वाला है. सो ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप क्योंकि वो यही सोच रहा था कि नेक्स्ट घोस्ट क्या बताएगा. घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट. नाउ द घोस्ट कम्स. अब प्रेजेंट डे अर्थ का घोस्ट आ गया. वॉक्स टू एबेनेजर्स बेड, लीन्स ओवर एंड टेक्स द कवर्स ऑफ. सो नाउ व्हाट दैट दिस घोस्ट डू, ही लीन्स, वो बेंड करता है एबेनेजर के बेड पे बेंड करके ही टेक्स द कवर्स ऑफ. उसके जो कवर्स थे मीन्स द बेड द शीट विच ही वॉज हैविंग ऑन हिमसेल्फ, वो शीट्स को हटा देता है. And he tells Ebenezer, wake up sleepy head. तो Ebenezer को वो बोलता है कि get up. Sleepy head इसलिए because he was sleeping. He was unaware of what was happening. We've got to make tracks out of here. So he says we have got to make tracks means I have come to teach you something. So get up, don't sleep. He beckons with his finger to follow quickly to a recycling center. So he beckons means he points out. वो अपनी फिंगर से इशारा करता है कि जल्दी उठो and you should follow me. मुझे फॉलो करो and I want to take you to a recycling center. Now what is a recycling center? Recycling center is a place, जैसे आजकल भी आप बहुत सुनते हो कि हमें थिंग्स को रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए. तो what we do is the plastic, paper, ये सब चीजें रिसाइकलिंग सेंटर में जाती हैं एंड देन दे आर गिवन अ न्यू शेप, न्यू थिंग इज मेड आउट ऑफ दैट एंड दैट थिंग इज यूज्ड. तो ऐसी प्लेस जहां पे थिंग्स को रिसाइकल किया जाता है दैट इज अ रिसाइकलिंग सेंटर. Ebenezer says, who are you? Now Ebenezer is asking him, who are you? The ghost replies, I'm the ghost of Earth Day present, follow me. So ghost says that I am the ghost of Earth Day present and you should follow me. The two walk together to a recycling center. So both of them are going to a recycling center. Ebenezer is asking, why are we here? Why we have come here? हम यहाँ पर क्यों आए हैं?
The ghost replies, look, listen and learn. So ghost says nothing. It does not explain anything himself. वो कुछ नहीं बता रहा है, बट उसको कहता है कि आप ध्यान से सुनो और समझो. क्या सुनना था? There was a group of children. वहां पे कुछ बच्चे थे. Those who were standing and they were talking to each other. So घोस्ट सिर्फ उसको, एबेंजर को इतना बोल रहा है कि आप उन सभी बच्चों की बातें ध्यान से सुनो, बिकॉज वेन यू विल लिसन यू विल लर्न समथिंग. आपको कुछ सीखने को मिलेगा. नाउ द स्पीकर मीन्स द फर्स्ट चाइल्ड इज स्पीकिंग. द फर्स्ट अर्थ डे वॉज ऑन April 22nd, 1970. Earth Day is a day to enjoy our planet, learn about our planet, and help our planet. What can you do to help the earth? Now the first child is explaining कि Earth Day कब से मनाना स्टार्ट किया था. वो समझाता है कि 1970 में फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया था. Why we celebrate Earth Day? Because it's day to enjoy. Earth is our planet, जिसपे हम रहते हैं. उसको एंजॉय करने के लिए, अपने प्लैनेट को जानने के लिए एंड अपने प्लैनेट को हेल्प करने के लिए, उसको बचाने के लिए अर्थ डे मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड नाउ ही इज आस्किंग दी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो. वो सभी बच्चों को पूछ रहा है कि आप बताइए आप क्या करेंगे अर्थ डे को मनाने के लिए या अपनी अर्थ को सेव करने के लिए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? द थर्ड चाइल्ड सेज, don't throw out your cans, glass, plastics or papers, recycle. So every child is now going to explain one good thing जिससे हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं. तो एक चाइल्ड क्या बता रहा है? He says that we should not throw cans, glass, plastic, paper. इन सबको थ्रो नहीं करना चाहिए, इनको रिसाइकल करने के लिए भेजना चाहिए. रिसाइकल सेंटर में भेज देना चाहिए जहां पे इनको रिसाइकल करके कुछ नई चीज बनाई जा सके. नेक्स्ट चाइल्ड सेज, थ्रो योर गार्बेज इन अ ट्रैश बिन, डोंट लिटर. सो इज सेइंग कि जितना भी गार्बेज है, जितना भी कचरा है, वी शुड थ्रो इन अ ट्रैश बिन, मीन्स डस्टबिन. वी शुड नॉट थ्रो हेयर एंड देयर. रोड्स पे कहीं भी कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड नॉट लिटर मीन्स गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. नेक्स्ट चाइल्ड सेज, डोंट वेस्ट वाटर, फिक्स लीकी faucets, turn the water off while you're brushing your teeth. Another child is explaining that to save Mother Earth we have to stop the wastage of water. If the faucets means taps, if the taps are leaky, मतलब taps में से पानी लीक करता है, तो उनको फिक्स करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल शुड फॉलो इज दैट व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ, दैट टाइम वी शुड कीप द टैप ऑफ. पानी चलता नहीं रहना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं. नाउ कम्स द टर्न ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड. लेट अस सी व्हाट ही इज सेइंग. वॉक, यूज द बस और कारपूल. Energy is precious. Turn off the lights and turn the heat down. Use it and we'll all lose it. Then another child is explaining that we have to make use of public transport, that is bus, or we should do carpooling. Carpooling means कि if 2 or 3 persons have to go to same place, अगर 2 या ज्यादा लोगों को एक सेम ही जगह पर जाना है, तो इंस्टेड कि वो सब अपनी अपनी कार अलग से लेकर जाएं, सारे मिलकर एक ही कार में चले जाएं, दैट इज कॉल्ड कारपूलिंग. सो इस सेइंग कि एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज प्रेशियस. वो बहुत कीमती है, उनको बचाना चाहिए. इफ देर इज नोबडी इन द रूम तो लाइट्स ऑफ होनी चाहिए. तो अगर हम एनर्जी को यूज कर लेंगे, पूरी तरह से उसको यूज कर लेंगे, वी विल लूज इट. मतलब एक टाइम आएगा जब एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुछ भी नहीं बचेगा यूज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट चाइल्ड इज एक्सप्लेनिंग, रीयूज योर शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल. ऑलवेज ट्राई टू यूज थिंग्स मोर देन once.
सो ही इज सेइंग कि जितने हमारे शॉपिंग बैग्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ऑल दीज थिंग्स जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, उनको करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार यूज किया और उनको थ्रो कर दिया. इफ वी कैन यूज देम अगेन, वी शुड यूज देम. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं, वी ड्रिंक दैट कोल्ड ड्रिंक एंड आफ्टर दैट बॉटल इज एम्प्टी, सो वी कैन यूज दैट बॉटल फॉर फिलिंग वाटर ऑल्सो, राइट. या फिर आजकल तो यू कैन सी कि प्लास्टिक बॉटल्स में कितने अच्छे से सिखाते हैं दैट प्लास्टिक बॉटल्स को पेंट करके आप उसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा सकते हैं. तो यू शुड डू दीज थिंग्स. Then next child explains, recycle your toys, books and clothes. Give them to children who need them. अपने जो toys हैं, books हैं, clothes हैं, you should recycle them. Recycle them means if they have become old and you don't want to use them. आपको लगता है कि खराब है, हमें यूज नहीं करने, आपके ओल्ड टॉयज हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, या क्लोथ्स छोटे हो जाते हैं, तो व्हाट यू कैन डू विद दैट? यू कैन गिव टू योर मेट्स और सम पुअर पर्सन जिनके लिए उन चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड योर बुक्स ऑल्सो, समटाइम्स योर कॉपीज एंड ऑल हैव एम्प्टी पेजेस एट द बैक. तो व्हाट यू शुड डू, आप उनको गरीब बच्चों को दे दो, वो उन बुक्स को पढ़ेंगे, उन कॉपीज को यूज कर सकते हैं, या आपको खुद भी करना चाहिए. अगर आपकी नोटबुक्स में पेजेस बच जाते हैं तो आप उनको रीयूज कर सकते हैं टू डू सम रफ वर्क और टू मेक सम ड्रॉइंग, एंड लाइक दिस यू कैन यूज देम. नाउ after hearing all these points, now how Ebenezer is reacting, let us see. These kids really think that they can make a difference. So he's saying कि ये बच्चों को क्या लग रहा है, उनको लगता है कि ये छोटे छोटे काम करने से क्या हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं. They have a wrong feeling. क्योंकि अभी भी Ebenezer जो है वो उनसे satisfied नहीं हो रहा, अभी भी वो यही फील कर रहा है कि ये छोटे छोटे काम करने से क्या अर्थ बच जाएगी. He is not liking all this. Ghost of Earth Day present is speaking now, walking back to Ebenezer's bedroom. Now both of them are coming back to Ebenezer's bedroom. दोनों वापस आ गए हैं रिसाइकल सेंटर से. You had better hope so, Ebenezer. So he says we should be hopeful. हमें होप रखना चाहिए कि छोटे छोटे काम करने से भी हम अर्थ को बचा सकते हैं. We are all depending on it. हम लोग अर्थ पे कितना डिपेंड करते हैं. अर्थ इज गिविंग अस एवरीथिंग. इट इज अ होम, इट्स अ प्लेस जहां हम रहते हैं. तो क्या हमें अपनी ड्यूटी नहीं करनी चाहिए? The next ghost will come to show you why. So he says, now I will leave and another ghost will come. That ghost will come and explain to you कि क्यों जरूरी है कि हम अपने आप को अर्थ को बचाने के लिए कमिटेड करें. वाई वी शुड वर्क सो दैट वी कैन सेव आवर अर्थ, वी कैन सेव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वाई वी शुड डू दैट, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द नेक्स्ट घोस्ट. So I hope today you have learned so many things, and the children, whatever points the children have spoken, I think they apply to us also. We should also follow these things to keep our planet safe. Nature is giving us a hint. ये जो इतना pandemic spread हो रहा है, बहुत सारे, you must be seeing that so many other things or other disasters are coming. हम सुनते हैं न्यूज में कि कोई तूफान आ रहा है. ये सब, this all are nature's warnings for us. Nature is warning us that we should change our habits so that the environment is safe. So I hope कि ये सब चीजें आप लोग भी अपने दिमाग में रखेंगे और उनको फॉलो करेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, हैव अ नाइस डे.